Okay, so hello students, how are you? Very good afternoon to all of you. I hope आप लोग मेरा आवाज सुन पा रहे हो और स्क्रीन भी विजिबल है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो टेक्स्ट करके कि आप लोग स्क्रीन को ठीक से देख पा रहे हो या नहीं। Just let me know in the comment section that whether you all can see the screen properly or not. That's very important. बताओ। और बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ आप लोग क्लास में एंड प्लीज शेयर द लिंक ऑफ द क्लास विथ योर फ्रेंड्स and your classmates so that they can also join in the class and they can be helpful because boundary value और image problem इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे हमारे क्लास में। तो I think these two topics are very very important and from the exam perception and not only that मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बच्चे या जो एस्पिरेंट्स हमारे 2024 जो जून का एग्जाम होने वाला है CSIR नेट उसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं। सो फॉर देम द होल कोर्स इज नाउ अवेलेबल एट a price of 11,665, which is of course a very low price. And I'm saying all of you to join as soon as possible because at this low cost, I think it's the least cost which is at which the whole course is available. So basically, all those students who were till now are postponing this plan because of the high price, now it's the time for them to join us and be a part of this success. So all you have to do to avail this offer is to use the promo code which is Sourav SOURAV and to avail this offer. And one more thing, it's a limited time offer, so do hurry up and don't be late. Okay, so let's initiate. हम लोग आज बात करेंगे बेसिकली लैप्लेस इक्वेशन के बारे में। तो लैप्लेस इक्वेशन हम लोग वन डायमेंशन में बात करने थे। We are going to be talking about Laplace equation in one dimension. In one, hang on. In one dimension. Laplace equation in one dimension. That's what we're going to talk about. अब यहाँ पे जरा देखो, पहले हम लोग जो चीज को मान के चलेंगे दैट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पहले पढ़ेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या बोला गया है? सर बोला गया है कि if the potential V depends only on one coordinate, depends only on one coordinate, वो कुछ भी हो सकता है x y z इन तीनों में से कोई भी अगर एक कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करे। मैं x को ले रहा हूं only on one coordinate x of an xyz Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system. Then Laplace equation becomes देखो हमारा लैप्लेस इक्वेशन है भाई डेल स्क्वायर v इज इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग लिख सकते हैं d2v dx2 बिकॉज v सिर्फ x के ऊपर ही वेरी कर रहा है एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये चीज है तो हम लोग लिख सकते हैं dv dx, फिर क्या हो जाएगा बेटा? dv dx हमारा हो जाएगा कोई एक कांस्टेंट सपोज c1 which is of course a constant, और अगर ये कांस्टेंट है मान ले तो हमारे लिए पोटेंशियल क्या हो जाएगा? v is equals to c1x plus c2, जहाँ पे c2 is again a constant, where c1 and c2 are constant and to be evaluated from the boundary conditions, जहाँ पे c1 और c2 क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम इज गिवन। दूसरी बात हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी ये वाला हो गया, अब इसके बाद हम लोग आएंगे देख भाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। इसके बाद हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में पढ़ेंगे। तो आ जाओ 1D स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर पढ़ने चाहें, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्या बता सकते हैं?
सर हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस केस, नाउ इन अ केस ऑफ स्फेरिकल सिमेट्री, in a case of spherical symmetry, SYMMETRY, in a case of spherical symmetry, the potential V, the potential V is a function of V is a function of the potential V is a function of the potential V is a function of R only. R only. The potential V is a function of R only and independent of theta and phi. Independent of किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है भाई? थीटा के ऊपर भी इंडिपेंडेंट है एंड फाई के ऊपर भी इंडिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड coordinates of an r theta phi spherical polar coordinate system. Spherical polar system. अगर यहां तक हमें पता है तो हमारा लैप्लेस इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर ऑफ कोर्स डेल स्क्वायर v हमारा 0 आएगा, बट सर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा डेल स्क्वायर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ddr. जस्ट बिकॉज़ v सिर्फ r के ऊपर डिपेंड करता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ना लिख के ddr लिखेंगे, ठीक है भाई? ddr r स्क्वायर इनटू dv dr should be equals to 0. अब यहाँ पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर इंटू dv dr should be equals to what? c1 that is constant. अब अगर ये चीज हमें पता है तो यहाँ पे c1 by r स्क्वायर लिख सकते हैं और r के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा बताओ? दैट इंप्लाइज dv is equals to c1 by r square into dr. अब बोथ साइड अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा? v is equals to हमारा आ जाएगा माइनस c1 डिवाइडेड बाई r, माइनस c1 बाई r प्लस c2. सही बात है भाई? माइनस c1 बाई r प्लस c2, ये हमारा आ जाएगा माइनस c1 बाई r प्लस c2, ये हमारा आ जाएगा माइनस c1 बाई r प्लस c2. जहाँ पे c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे. एक प्रॉब्लम मैं तुझे करके दिखा देता हूँ, उससे तेरे को आइडिया मिल जाएगा कि सर कैसे इसको करना है. तो एक हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, जिस एग्जांपल में क्या बोला गया है? बोला जा रहा है कि let us consider two concentric spherical conductors of radii a and b respectively. Let us consider two concentric spherical conductors of radii, spherical conductors of radii a and b respectively, जहां पे बोल दिया गया है सर कि a जो है हमारे b से छोटा है, फुल स्टॉप. The inner one is kept at a potential v0. The inner one is kept at a potential v0 and the outer one is grounded. Outer one is grounded. Inner one kept at a potential v0 and outer one is grounded. अगर ये बोल दिया गया है, पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट, पूछा गया है फाइंड द पोटेंशियल एट एनी इनसाइड पॉइंट, एनी इनसाइड पॉइंट. बच्चों कैसे निकालोगे ये चीज? देखो सर, सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास पता है कि अगर पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ रेडियल
डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, थीटा एंड फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। So from the previous derivation we know that v equals to minus c1 by r plus c2. From the previous derivation we know that v equals to minus c1 by r plus c2. ठीक है, ये चीज है, बाकी कहीं पे कोई चार्ज नहीं है। सो सर हम लोग लिख सकते हैं कि बाकी जगह पे जो हमारा है, I mean I can write that v of r is basically minus c1 by r plus c2. That's my potential for spherical solution. अब यहाँ पे बताओ v at r equals to a फिर क्या होना चाहिए हमारा, क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि इसका वैल्यू क्या है भाई, r equals to a पे पोटेंशियल इज v नॉट, दैट इज minus c1 by a plus c2 हमारा v नॉट है सर, ये है। दूसरी बात v at r equals to b जो हमारा क्या है भाई, minus c1 divided by b plus c2। अच्छा, जो दूसरा वाला स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, इसके बाहर ये एक स्फीयर है, इसके बाहर और एक स्फीयर है, ये वाला ग्राउंडेड है, ये वाला एक पोटेंशियल v नॉट पे कांस्टेंट है, तो r इक्वल्स टू पे पोटेंशियल v नॉट है, बाहर वाला ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर पोटेंशियल जीरो हो जाता है तो यहाँ पे ये दोनों तुम्हारे बाउंड्री कंडीशंस हैं, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके ये हमारे क्या है, बाउंड्री कंडीशंस, ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस को यूज करके हम लोग c1 और c2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सॉल्विंग द अबव टू इक्वेशंस, इन दोनों का एक काम करो, दिस माइनस दिस कर, तो तुम देखना यहाँ पे आ जाएगा c1 by b minus c1 by a is equals to v नॉट। ठीक है भाई, तो c1 को कॉमन ले लें, c1 कॉमन ले लें, a minus b divided by ab equals to v naught, तो v naught ab by a minus b, c1 is equals to v naught ab by a minus b, c1 is equals to v naught ab by a minus b, c1 equals to solving we get, बताओ हमें क्या मिल रहा है, we get, sir after solving these two equations I'm getting c1 is equals to v naught ab divided by a minus b। अगर c1 का वैल्यू मिल गया है तो c2 का वैल्यू निकाल सकते हो, c2 कैसे निकालोगे सर, एक काम करते हैं, c2 जो है वो है c1 डिवाइडेड बाय b, तो v naught into a डिवाइडेड बाय a, तो वो हमारा आ जाएगा v naught into a डिवाइडेड बाय, तो c2 हमारा क्या होगा सर, c2 होगा v naught into a divided by a minus b। अगर c1 c2 मिल गया है हमारा आंसर क्या होगा, therefore I can write sir v for r greater than a but less than b, हमारा जो पोटेंशियल होगा that is actually equals to minus c1 by r, तो negative of v naught ab by a minus b into r plus c2 that is v naught a by a minus b, that's all I can write। ठीक है भाई, ये हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हो गया देख, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे जो पार्ट 3 में, ये था 2, अब पार्ट 3 में हमारा क्या आएगा भाई बोल, तो पार्ट 3 में हमारा आएगा लैप्लास इक्वेशन इन सिलिंड्रिकल सिमेट्री, लैप्लास equation in cylindrical symmetry, Laplace equation in cylindrical symmetry। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं that if the potential, here we can write that in case of cylindrical symmetry the potential V, in case of cylindrical symmetry the potential V is a function of rho only, is a function of रो ऑनली। रो ना लिख के तुम लोग रो को कभी हम लोग चार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेसिकली रो ना लिख के ये सबसे बेहतर होगा कि हम लोग अगर
एस लिखे, ठीक है, तो वो बेहतर होगा। इज अ फंक्शन ऑफ एस ओनली ऑफ एस फाई जेड cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. Full stop. ठीक है, तो लैपलेस इक्वेशन क्या बन जाएगा? देन लैपलेस इक्वेशन will become लैपलेस इक्वेशन will become del square v equal to 0 है। बहुत अच्छा है बच्चों, डेल स्क्वायर v अगर 0 है तो तुम लोग यहाँ पे इसको सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखोगे। सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर v को तुम लोग कैसे लिखते हो, बताना सर। How do you write the del square v in cylindrical polar coordinate system? Well, it is 1 by s into dds s into dv ds, just because it doesn't depend upon phi and z, so it will be like this. तो dv ds पर रहेगा s मल्टीप्लाई करेंगे dds डिफरेंशिएट करेंगे, फिर 1 by s डिवाइड कर देंगे। ये वाला चीज हमारा 0 हो जाना चाहिए। अगर ये 0 है, देख s को इधर 0 कर दे तो dds ऑफ दिस थिंग इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, s into dv ds क्या हो जाएगा भाई, बता। कांस्टेंट, दैट इज c1। अगर ये हमारा कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं c1 by s into ds dv equals to, so that implies dv equal to c1 by s into ds। तो ds by s मतलब ln of s, right? So v is equals to can be written as c1 into ln of s plus c2। ये हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे c1 and c2 आर टू बी इवैल्यूएटेड बाय द बाउंड्री कंडीशन, जहां पे c1 and c2 हमारे इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, बाउंड्री कंडीशन से निकालेंगे। जैसे हम लोग स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करने के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करे हैं, अब लोग सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम करने के बाद, सिलिंड्रिकल सिमेट्रिक करने के बाद एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम में क्या बोला गया है भाई, लिख लो सर। प्रॉब्लम में बोला गया है, एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन में बोला गया है कि let us consider two long coaxial cylinders of radii a and b. Let us consider two long coaxial cylinders of radii a and b। बोल दिया गया है कि a is less than, बड़ी अच्छी बात है सर, a is less than बोल दिया गया respectively respectively। Now the inner one is R and the outer one is at potential V0। The inner one is R and the outer one is at a potential V0। यहाँ पे पिछले वाले में आउटर वन को आर्थित किया था, इनर वन को एक पोटेंशियल V0 में रखा था। इसमें क्या किया, इनर वन को हमने ग्राउंडेड कर दिया, बाहर वाले को हमने एक पोटेंशियल V0 में रखा। पोटेंशियल V0, find the potential at any inside point, find the potential at any inside point। At an inside point s greater than a but less than b। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को सर? देखो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि सर ये जो प्रॉब्लम है ये सिलिंड्रिकल सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, तो हमारा जो v ऑफ s होगा वो क्या होगा, c1 into ln of s plus c2, जो हमारे यहाँ से सॉल्व c1 into ln of s plus c2। हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस क्या है सर,
V at S equals to A। इनर वाले को सर हमने ये एक सिलेंडर है मान लो, बाहर में और एक सिलेंडर है ऐसा, इसको हमने ग्राउंड किया है, इसको एक पोटेंशियल V नॉट पे रखा है। तो ये सिनेरियो है, समझ में आया? ये एक सिलेंडर है बाहर में और एक सिलेंडर है, इसको एक पोटेंशियल V नॉट पे रखा है, इसको हमने ग्राउंड, मतलब इसका पोटेंशियल जीरो है, इस बाहर वाले का पोटेंशियल V नॉट रखा है। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच के रीजन का पोटेंशियल क्या होगा। अच्छा, V at S equals to A क्या होगा? C1 ln of A plus C2। ये तो क्वेश्चन में बोल दिया गया है सर ग्राउंडेड है तो जीरो होगा। अच्छा सर, V at S equals to B क्या होगा? बेटा इस फॉर्मूले से तो लग रहा है C1 ln of B plus C2 आएगा, बट सर यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया कि बाहर वाला जो सिलेंडर है उसको V नॉट पोटेंशियल में किया है, तो ये भी, तो ये जो दो इक्वेशन आई, ये दो इक्वेशन मेरे क्या है? बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। तो भाई ये होने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या सॉल्व करोगे? एक काम करो, दिस माइनस दिस कर दो, तो C1 ln of B minus C1 ln of X, C1 को कॉमन ले लो, ln of B minus ln of X मतलब ln of B by A, तो C1 into ln of B by A, यहाँ पे ये तो चला जाएगा, तो ये तुम्हारा V नॉट आएगा, तो C1 क्या हो जाएगा? V नॉट by ln of B by A, V नॉट C1 is equals to हमारा V नॉट by ln of B by A, V नॉट by ln of B by A, तो वहां से तो C2 मिल जाएगा। तो solving the above two equation, solving we get sir C1 जो आएगा that is V naught divided by ln of B by A, C2 क्या हो जाएगा सर हमारा? देख C1 अगर हमारा V naught divided by ln of B by A है, तो C2 हमारा हो जाएगा I can simply write negative of C1 ln of A, C1 पता है तो V naught ln, तो माइनस V naught ln of A divided by ln of B by A, ये है माइनस V naught ln of A माइनस B naught ln of A divided by ln of B by A। तो अगर C1 मिल गया है, C2 मिल गया है, तो बाकी का काम तो बहुत आसान है सर। ठीक है, वो चीज़ बहुत आसान है, वो हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? तो हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल होगा तुम्हारा, therefore potential V for S greater than A but less than B, I can write it down as C1 that is V naught in by ln of B by A into ln of S प्लस C2, हालांकि C2 तो यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे ये साइन को माइनस कर दो, V naught ln of A डिवाइडेड बाई ln of B by A, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देख V नॉट ln of B by A तो कॉमन है दोनों में, तो इसको बाहर ले लूंगा तो ln of x माइनस ln of A आ जाएगा, ln of x माइनस ln of A मतलब ln of x by A, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा V नॉट ln of S by A डिवाइडेड बाई ln of B by A, ये सिनेरियो आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ तक अगर आ गए हो तो इसके बाद हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे कि नाउ वी कैन टॉक अबाउट समथिंग लाइक तुम्हारा जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है इन 2D, जो इम्पोर्टेंट है इन 2D स्फेरिकल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ जाएगा फिर बताने यहाँ पे?
एक 2D सर्कल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तुम्हारा v ऑफ r होता है वो होता है तुम्हारा समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी। इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, काम मिल जाएगा। an कभी दूसरे टाइम पे डेरिवेशन कराऊंगा, फिलहाल तुम लोगों का CSR बहुत पास है तो दैट्स व्हाई फॉर्मूला याद रखने से काम मिल जाएगा। फिलहाल CSR दे लो, उसके बाद डेरिवेशन कर लेना। हालांकि कोई भी स्टैंडर्ड बुक में है, बी घोष में डेरिवेशन है, ग्रिफिथ्स में है, तुम लोग देख सकते हो। an r to the power of n plus bn by r to the power of n plus 1 pn of cos theta। pn of cos theta है लेजेंडर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये ध्यान रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि they have asked you a question which says they have asked you a question. The question says that the potential on the surface of a hollow sphere of radius r the potential on the surface of a hollow sphere of radius capital R is given by capital R is given by phi 0 of theta equals to a sin square theta by 2, phi 0 of theta equals to a sin square theta by 2। ये इस बार CSIR नेट में भी आया था, सेम क्वेश्चन, where इस बार लास्ट बार जो CSIR नेट हुआ था उस बार, मतलब जो लास्ट 2023 के जून में जो एग्जाम हुआ था उसमें, where theta is a polar angle, where theta is a polar angle, where theta is a polar angle, and using Laplace equation find potential at any inside, using Laplace equation find potential at any inside point, find potential at any inside point। कैसे निकालोगे? inside point मतलब for small r greater than capital R, for small r greater than capital R। अच्छा भाई लोग जरा यहाँ पे देखिए कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस पोटेंशियल के ऊपर, तो सर पोटेंशियल एट इनसाइड पॉइंट, the potential at any inside point must satisfy Laplace equation, and hence the solution given by the solution is given by v of r theta, I can say, or simply phi of r comma theta summation over n equals to 0 to infinity an r to the power of n plus bn by r to the power of n plus 1 into pn of cos theta। मुझे एक बात बता, अगर ये इनसाइड पॉइंट के लिए है, at r equals to 0, पोटेंशियल क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। सो phi at r equals to 0 must be finite,
तो बोलते भाई ये सोल्यूशन में अगर मैं आर इक्वल टू 0 पुट करूं ये वाला टर्म 0 आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आर इक्वल टू 0 पुट करूं तो ये वाला टर्म तो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है, तो ये वाला टर्म मेरे को दिक्कत दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा bn को 0 पुट कर दूंगा, therefore bn must be equal to 0। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ठीक है। तो therefore मेरा फाई क्या होगा, फाई ऑफ r कॉमा थीटा मेरा क्या होगा बेटा, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an r to the power of n into bn of cos theta। अब सब लोगों ने ये कहा है on the surface of a hollow sphere, surface पे पोटेंशियल है फाई नॉट ऑफ थीटा a sin स्क्वायर थीटा बाय 2, सरफेस पे पोटेंशियल है फाई नॉट ऑफ थीटा a sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें फाई ऑफ r इक्वल्स टू कैपिटल R कॉमा थीटा क्या होना चाहिए भाई, समेशन ओवर n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an कैपिटल R टू द पावर ऑफ n इनटू pn ऑफ cos थीटा, ये क्या होना चाहिए, a sin स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2, अच्छा देख a sin स्क्वायर थीटा बाय 2 को क्या लिख सकते हैं, a sin स्क्वायर, अच्छा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा बाय 2 इक्वल्स टू sin स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 of theta by 2, that is cos theta by 2। बेसिकली ये आ जाएगा a by 2 माइनस a by 2 cos theta, तो a by 2 माइनस a by 2 cos theta। तुम लोग को पता होना चाहिए p0 of cos theta is equals to p0 of x is equals to 1, p1 of x equals to x। तो बता यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a by 2 इंटू p0 of cos theta प्लस, सॉरी नॉट प्लस, माइनस a by 2 इंटू p1 of cos theta माइनस a by 2 इंटू p1 of cos theta। बच्चों जरा सोच समझ के बताओ कि यहाँ पे ये जो समेशन है ये समेशन कैसे जा रहा है, a1 कैपिटल R टू द पावर ऑफ 1 p, अच्छा a0 कैपिटल R टू द पावर ऑफ 0 दैट इज a0 into p0 of cos theta दैट इज 1, तो a0 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से, सो देयरफॉर अगर हम लोग कंपेयर करें हम बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे बता n इक्वल टू 0 के लिए ये 1 हो गया, p0 ऑफ cos थीटा आएगा, ठीक है, r टू द पावर ऑफ 0 इज 1 a0, तो a0 यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, कैपिटल A by 2, a1 क्या आएगा भाई, a1 r टू द पावर ऑफ 1 इनटू p1 ऑफ cos थीटा, तो a1 इनटू r हमारा क्या आएगा यहाँ पे, a1 इंटू r टू द पावर ऑफ 1 जो हमारा r आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस a by 2 r, माइनस a by 2 r। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, तो a नॉट है हमारा a by 2 और a1 क्या है हमारा माइनस a by 2r, बाकी a का वैल्यू an फॉर n ग्रेटर देन 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पे और कोई वैल्यूज नहीं है। तो अगर ये बाउंड्री कंडीशन यूज करके मैं सारे के सारे ये कांस्टेंट निकाल लिया, तो a1 है a0 है, तो जरा मुझे बताओ पोटेंशियल क्या होगा, फाई एट r कॉमा थीटा जो आएगा मेरा पोटेंशियल एट r कॉमा थीटा आएगा सर समेशन ओवर, हालांकि समेशन की जरूरत है, दो ही टर्म्स हैं, तो सर ये हमारा आएगा a नॉट मतलब a by 2 r टू द पावर ऑफ an r टू द पावर ऑफ 2 r टू द पावर ऑफ 0, ठीक है, cos थीटा फाइन, फिर जरा को प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि a1 a by 2r into r, तो यहाँ पे a by 2 लिखने में बेहतर है cos थीटा, तो ये हमारा होगा सर a by 2 कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस cos। अच्छा ये तो है नहीं, एक सेकंड, ये a by 2 आ रहे हैं तो ये हो जाएगा a by 2r into r into cos थीटा, तो a by 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस स्मॉल r by कैपिटल R into cos थीटा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। A1 r to the power small r to the power of this। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम बच्चों को समझ में आया है। ठीक है, ये ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारे इस बार सीएसआर में भी आया था। ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारे इस बार सीएसआर में भी आया था। अच्छा, दूसरा एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा वो ये है कि एक इमेज प्रॉब्लम का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आया था जेस्ट 2022 में। बोला गया है जेस्ट 2022 का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला गया है बच्चों? क्वेश्चन में कहा गया है, देख कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है? A point charge Q is fixed at a point A inside a hollow grounded conducting spherical shell. A point charge Q is fixed at a point A. A point charge is fixed at a point A. A point charge Q, but I must write Q. A point charge Q is fixed at a point A inside a hollow grounded conducting spherical shell. Inside a hollow grounded conducting spherical shell, inside a hollow grounded conducting spherical shell of radius capital R at a distance of radius capital R at a distance A from the center C. From the center C. Full stop. A from the center C. Now the force on the sphere due to the presence of the point charge is the force on the sphere due to the presence of the point charge, of the point charges, point charge is, यहाँ पे ऑप्शंस बोला गया है। ऑप्शन ए है 1/4πε0, हैंग ऑन। ऑप्शन ए में बोला गया है 1/4πε0, 1/4πε0 q square ar divided by r plus a square into r minus a square, r plus a square into r minus a square। b में बोला गया है 1/4πε0 q square ar divided by r plus a square into r minus a square। ऑप्शन सी में बोला गया है 1/4πε0 q square into r minus a square, एंड डी में बोला गया है 1/4πε0 q square into r minus a square। अच्छा, along AC, along CA, this is along AC, this is along CA, यहाँ पे बोला गया है along AC, यहाँ पे बोला गया है along
सी ए। तो भाई पहले देखना पड़ेगा ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। ये जो स्फेरिकल शेल है वो कौन सा वाला है, वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। अब देख अगर हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि अगर हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो उसके लिए इमेज चार्जेस क्या कर देते हैं। तो इमेज चार्ज है, इमेज चार्ज होता है ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल के लिए माइनस क्यू इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ए। कैपिटल आर डिवाइडेड बाई ए मतलब माइनस क्यू इंटू ए बाई डी, जहाँ पे रेडियस होता है डिवाइडेड बाई डी इज द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे वो चार्ज प्लेस किया गया है। यहाँ पे तुमने बोला है रेडियस आर है एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर से, ए डिस्टेंस पे तुमने प्लेस किया है उसे। और ये इमेज चार्ज का पोजीशन क्या होगा, इमेज चार्ज इज दिस सिचुएटेड at a distance r square by a from the center, from the center। r square by a from the center, तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हमारा ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, मान लो ये है स्फीयर का रेडियस, स्फीयर का सेंटर जिसको हम लोग सी बोलेंगे, सी बोलेंगे। अब मान ले इस सेंटर से at a distance I don't know like a I have placed a charge। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन किया हुआ था कि a is less than that। It was mentioned in the question somewhere that यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ a है that is actually less than r है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया था जस्ट के क्वेश्चन में। तो a लेस देन r अगर है तो मान ले यहाँ पे जो पॉइंट ये वाला है ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा a है and I can say this point is my b, this point is my b। और यहाँ पे ये वाला जो है ये क्या है भाई, ये हमारा q रखा है यहाँ पे और यहाँ पे हमने रखे हैं q डैश। तो q डैश क्या है हमारा इमेज चार्ज, q क्या है हमारा एक्चुअल ओरिजिनल चार्ज। तो इस ओरिजिनल चार्ज के लिए इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो इंड्यूस चार्ज आएगा वो बहुत टफ होगा। उस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को मान के पोटेंशियल निकालना भी बहुत टफ होगा या फोर्स निकालना बहुत टफ होगा। तो हमने क्या किया कि उस इंड्यूस चार्जेस की जगह पे हमने एक इक्विवेलेंट इमेज चार्ज ले लिया, तो हमारा q डैश इसका हमने b पे रखा। तो उस इंड्यूस चार्ज की वजह से कोई एक आर्बिट्री पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस इमेज चार्ज की वजह से भी उस आर्बिट्री पॉइंट पे वही पोटेंशियल। तो अगर ये हमारा यहाँ तक हो गया है तो हमें पता है कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है हमारा सर, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज आर ए। अगर ये वाला डिस्टेंस a है तो a के बाद I can say that if this distance is actually my a, this is a, this is b and q dash, this is my c। So now I can say that force क्या होगा, therefore force on the sphere means force on induced charge that means what, that implies force on q dash। तो q dash के ऊपर फोर्स कौन देगा, q देगा जो क्या होगा 1/4 pi epsilon naught q dash डिवाइडेड बाय ये जो ab है ना
ये ए बी स्क्वायर होगा बेसिकली। तो ए बी कैसे लिखेंगे, सी बी माइनस सी ए स्क्वायर, सी बी माइनस सी ए स्क्वायर। भाई सी बी क्या है हमारा, क्यू डैश कितने डिस्टेंस पे है, कैपिटल आर स्क्वायर बाई ए। सी ए क्या है भाई हमारा, सर सी ए है हमारा ए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू डैश मतलब माइनस क्यू स्क्वायर इंटू आर बाई ए डिवाइडेड बाई सी बी माइनस सी ए। सी बी क्या है बताना, सी बी जो है हमारा वो है, सी बी है हमारा ये कैपिटल आर स्क्वायर बाई ए, और सी ए क्या है ए, तो कैपिटल आर स्क्वायर बाई ए माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, अच्छा ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दो तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे ए है, ये ए से ये ए चला जाएगा, तो माइनस क्यू स्क्वायर कैपिटल आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाइन, और नीचे है 1/r स्क्वायर, तो r प्लस ए इंटू आर माइनस ए, आर प्लस ए इंटू आर माइनस। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए, इसका स्क्वायर है ना भाई, तो आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस स्क्वायर बनेगा, आर प्लस ए स्क्वायर इंटू आर माइनस स्क्वायर, यहाँ पे नीचे क्यू स्क्वायर होगा और नीचे ए स्क्वायर होगा, तो बचेगा तो यहाँ पे एक ए भी रहेगा, फाइन। तो माइनस क्यू स्क्वायर आ रहा है मेरे टाइप्स में ना, 1/r प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/r, ऐसा कुछ है। अच्छा फोर्स का डायरेक्शन को लेके दिक्कत है, डायरेक्शन किस तरह होगा, देखो ये स्फीयर के ऊपर फोर्स इस तरफ होगा, तो अलोंग द सेंटर, मतलब अलोंग द सेंटर मतलब इस डायरेक्शन में है AC, तो अलोंग AC लगेगा फोर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यस। तो तुम्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि इमेज चार्ज क्या आता है और इमेज चार्ज के पोजीशंस क्या होते हैं, अगर ये तुम्हें ध्यान में है तो तुम कोई प्रॉब्लम कर सकते हो मेथड ऑफ इमेजेस की। ठीक है बच्चों, चलो फिर बताओ, तुम लोगों के मन में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो बता सकते हो, वरना मैं क्लास यहाँ पे एंड कर दूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, otherwise I will end the class over here. Thank you.